Good morning students, welcome back to the class 8 subject SS, as we are going to discuss about the topic of chapter number 2 known as soil. And in soil we will be discussing factors of formation of soil and then degradation and conservation of soil. So let's begin with the topic known as soil. What is soil? Soil is a thick layer of grinded substance covered on the surface of the earth is called as soil. Apart from that, we can say that soil is closely linked with the land. Apart from that, the land formation is also depending on the different types of soil. Soil can be an organic matter, mineral and weather rock to found on the earth. This can be happened as the process of weathering. Weathering क्या है? तो weathering normally it's a breakup of decaying and explosive rock by the temperature change in temperature, frost action, plants and human activity. वेदर रॉक क्या होता है? ज़मीन के नीचे वाला सबसे हिस्सा जो होता है पैरेंट रॉक के ऊपर, उसको हम लोग कहते हैं वेदर रॉक. वो वेदर रॉक जो है वो ब्रेक डाउन होता है डिफरेंट वेज़ में. उसको ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर, फ्रोजन एक्शंस, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है. उसकी वजह से क्या होता है कि वो फॉर्म ब्रेक होता है. तो सॉइल जो है वो एक तरह से इंटरलिंक्ड या लिंक्ड है, क्लोजली लिंक्ड विद द लैंड है. वो बेसिकली सॉइल जो फॉर्म होता है वो टॉपेस्ट मोस्ट अपर लेयर पे आपको जल्दी मिल जाती है. और सॉइल को फॉर्म होने में या 1 सेंटीमीटर सॉइल फॉर्म होने में 100 ईयर्स कम से कम लग जाते हैं. सो टॉपर सॉइल हम लोग पढ़ सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा 7th स्टैंडर्ड में, टॉपर सॉइल, सब सॉइल, वेदर रॉक एंड पैरेंट रॉक. तो टॉप सॉइल जो है उसके अंदर ह्यूमस एंड वेजिटेशन आपको आसानी से मिल जाता है. सब सॉइल जो है वो स्लिट, सैंड, क्ले उस तरह से आपको मिलता है. उसको हम लोग अर्थ मटेरियल भी कह सकते हैं. फिर दूसरा वेदर रॉक. वेदर रॉक का मैंने आपको एग्जांपल दिया. इट इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ एन रॉक from which the temperature, frozen action, plants, animal and human activities are taking actions. So ये कुछ reasons हैं जो soil profile के अंदर include होते हैं. अब डिस्कस करते हैं factors of soil formation की. तो मेजर फैक्टर्स जो हैं वो है आपके पेरेंट रॉक, क्लाइमेट फैक्टर्स. उसके अलावा रिलीफ, फ्लोरा एंड फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टाइम. ये 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो सॉइल फॉर्मेशन होने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम कंपोजिशन. इट कैन बी वेरीड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. It can be varied from area to area, place to place. So that we can say that the factors of formation, soil formation, is also having a certain factors like parent rock, climate factors, and that factors, other than that factors, it is topography, role of organic material, time. All the things are involved in forming a soil for that particular place. So let's begin with the parent rock. What is parent rock? Parent rock is determined by the color, texture, chemical properties, minerals, contents and permeability. So this kind of things are been found on the parent rock. The parent rock is the inner core of that particular land. Then climate plays an important role, like temperature, then rainfall influences, weather, humus formation. All these things are impacting the soil to grow. Apart from that, we can go for relief. Relief is ultimately known as altitude and sloping. Altitudes are considered as heights and slopes also determines that how accumulated the soils are been occurred. Apart from that, flora and fauna and microorganism also plays an important role to form an soil. And the most important thing is time. Time is also an important source to make a soil profile more solid to use, and it can be used for the long period of time. If we take care of that soil, it will be very helpful for us and our generation. So going with the further known degradation. What is degradation of soil formation? Soil erosion, depletion of a major threat of soil's resources. Both are being occurred by human factors and natural factors. Degradation of soil are needed by the different activities done by the human being like deforestation, overgrazing,
over usage of chemical fertilizers and pesticides. Rain wash, landsliding, and floods are the certain examples of human activity and natural activities. फ्लड आ जाना, साइक्लोन आ जाना, अर्थक्वेक आना, लैंडस्लाइडिंग होना, ये सब नेचुरल के कंट्रोल में। वेरेज जब हम लोग बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, यूज़ ऑफ केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स, ये सब ह्यूमन बींग खुद करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। तो ये सब क्या है, ये सब डिग्रेडेशन है सॉइल के। इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सब मेथड्स आपको दिए हैं। एक तो आपको दिया है मल्चिंग। तो मल्चिंग में होता क्या है, एक तो बैकग्राउंड होते हैं ये, इनके प्लांट्स जो होते हैं वो पूरे लेयर्स को कवर करके रखते हैं और वो ओवर मटेरियलाइजेशन रखते हैं, और यहाँ पे फोडर का इस्तेमाल करके आप रिटेन या रीगेन करवाते हो सॉइल मॉइस्चर। उसके बाद में आता है काउंटर बैरियर। काउंटर बैरियर एक्चुअली एक तरह का ऑब्स्टिकल होता है जिसके थ्रू आप स्टोन, ग्रास, सॉइल, इससे आप बैरियर्स बनाते हो। इससे क्या होता है कि आपके आसपास के जो लैंड्स के अंदर जो सॉइल है वो सॉइल इधर उधर मूव नहीं होगी, वो बेसिकली सेम एज इट इज़ चलेगी, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आगे कंट्रोल बैरियर। कंट्रोल बैरियर के अंदर हम लोग यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग हर जगह कलेक्टेड एरिया ऑफ वाटर के आसपास में हम उधर बैरिंग करके रखते हैं। उसके बाद में आता है रॉक डैम्स। रॉक डैम्स एक तरह का पाइल अप स्लोप डाउन एरिया है जहाँ से आप फर्दर सॉइल लॉस नहीं होने देते। उसके बाद में आता है ट्रांस, इंटरक्रॉपिंग, काउंटर प्लाउजिंग, शेल्टर बेल्ट, ये सब प्रोसेसेस हैं। इससे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मेजरमेंट कर सकते हैं। अब ट्रांस फार्मिंग की बात करें तो ट्रांस फार्मिंग बेड शीट पे या ब्रॉड शीट पे हम लोग इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है। और इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है वो बहुत आसानी से हम लोग फ्लैट एरियाज़ में सॉइल को रोकने के लिए हेल्प करा सकते हैं। उसके बाद में आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है एक बार आपने वीट प्रोड्यूस किया तो सेकेंड टाइम आप वीट प्रोड्यूस नहीं करोगे, वहाँ पे आप कुछ और प्रोड्यूस कर लोगे, फिर थर्ड टाइम वापस वीट प्रोड्यूस करोगे। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव ऑप्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट कंट्रोल प्लॉजिंग इज़ अल्टीमेटली अ पैरेलल कॉन्सेप्ट in which natural barriers are being formed with the water flowing on downward slopes. Apart from the shelter belt जो होता है वो अल्टीमेटली खेतों के आसपास में आप झाड़ प्लांट कर देते हो, तो विंड एनर्जी जो है वो आपके सॉइल को फॉर्म करके ले नहीं जाती। तो बेसिकली वो ट्रीज़ जो है वो विंड एनर्जी को कंट्रोल करके रखती है। इससे क्या होगा, सॉइल फर्टिलिटी आपकी ज़मीन से दूसरी ज़मीन पे नहीं जाएगी। सो ये तो है सॉइल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। फिर बाद में हमने फॉर्मेशन एंड देन डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मेजर्स हम लोगों ने देखा। इसके अलावा जो टॉपिक आएगा वो है वाटर, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए काफ़ी है। दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो एज एन वर्किंग वाटर एंड वाटर कंजर्वेशन प्रोसेस in next lecture. That's it for today. Thank you.